Welcome to Everyday Podcast. Let's talk. This is your host Mohammad Afan, and we're doing a special episode regarding student counseling. So we have some special guests regarding them. We have Alize. तो Alize थोड़ा सा introduction दे दे जो लोग आपको नहीं जानते. Sure. So my name is Alize Atif, and I'm a college career counselor and founder of Be Guided now, and recently a podcast host by the name of Really Real with Alize. And I'm really excited to not be the host but be the guest today. Right. So I think it's a pleasure to you have another host to in front of me, because normally people don't have the experience. They are camera shy, and then they stutter there. I'm just blind at this point. It's great to have someone who has the experience, and I think it's going to be a great conversation going ahead. So let's begin. You said you were a career counselor or college counselor, Yeah. or you were a college counselor. So how did that journey begin? So देखिए, when I was a student myself, तो थोड़े ऐसे decisions थे जो मुझे difficult लगे. Let's say when I did my undergrad in Turkey, I went from KGS. I think I was the second or third person to go to Turkey. तो information gap था जो at the time of application मुझे पता नहीं था. When I went there, इतना बड़ा language barrier था which I felt I was not aware of, or I hadn't carried independent research for. तो cultural barrier, settling in, और बहुत difficulty थी because of language. Classes, lectures वन English, पर जो tutorials होते हैं जिनमें actual learning होती है वो Turkish में होते थे. तो as a student I faced difficulty settling in, and I realized कितनी important एक तो ये बड़ी mistake भी हो गई है, but कितनी important learning है, and how can I use my learning to make others avoid this. तो ये दिल से एक reason था, passion था. Here, when I came back to Pakistan, I had actually done my master's in marketing from Imperial College. I had a 9-month validity visa to work in the UK. I was working part-time in Barclays. I came back because I was missing my family, and it had been 5 years that I was away. Right. I came with the plan कि 2-3 हफ्ते I'll meet them, biryani खा लूँगी, I'll settle back in. But I actually randomly went for an interview of a college counseling role at Cedar College. So I think when I walked into a school, not as a student but potentially working in the admin side, वो जो sunlight थी, energy थी, एक fulfillment थी, वो बहुत अच्छी feeling थी, environment बड़ी मुझे सही लगी. Right. So I took that job on a whim, and I stayed there happily for a year to only realize कि ये तो मैंने अब career बनाना है. And then after experience over there for 1 year, I started Be Guided now. Right. So, let's talk about, student counseling. You have counseled a lot of students. Let's talk about, what's the number one challenge the student face? मतलब, why don't they have access to student counseling? Yeah. और, जैसे घर में बच्चा पैदा होता है तो पहले से डिसाइड है कि इसने ये करना है. खास तौर पे लड़कियों में तो they want to build doctors. Yes. लड़के में, हो तो इंजीनियर. ये कल्चर बना हुआ है. तो मतलब what do you think? मतलब you had to deal with a lot of students that don't want to do medicals or don't want to be engineers. So मतलब how did you counter? मतलब how was your experience there? देखिए, जो सबसे मैंने कॉमन प्रॉब्लम देखी है ना, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर या सोशल स्ट्राटा, जब कॉलेज काउंसलिंग या करियर चूजिंग की बात आती है, प्रॉब्लम ये होती है टू लिटिल टू लेट. पेरेंट्स एंड किड्स गेट on the same table to have very difficult discussions very late. या वो finances की हो, as a family what can we actually afford, या how much does a certain country actually cost. आइडिया ही नहीं होता, और आइडिया जब होता है तो पेरेंट्स के माइंड में कुछ और है, स्टूडेंट के माइंड में कुछ और है, तब तक वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेविंग, इन्वेस्टिंग होती नहीं है, और फिर वो एक इंटेलेक्चुअल डिसीजन से इमोशनल डिसीजन हो जाती है. पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप सफर करते हैं. True. और पीयर प्रेशर की वजह से अगर आप यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया नहीं गए तो वो एक और टैबू है जो बच्चे समझते हैं अम्मी वो आप समझ नहीं रहे, तो मुझे यूके अप्लाई करना है टू थिंक दैट आई एम स्टूडेंट इनफ और वर्दी इनफ. बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कॉमन कंसर्न इंडिपेंडेंट रिसर्च और टाइमिंग का है. Right. I had that intention. You went to KGS. I wanted to go to KGS. That was my dream. I unfortunately didn't get in. So that was the only day that I did. शेयरिंग आपने किस ग्रेड में ट्राई किया था? I started in A levels. तो आपने A level में ट्राई किया? A level में try Okay. किया. I got the option to go in O levels as well, but I said नहीं यार, I'll try in A levels. And unfortunately, I didn't get in A levels. Then I said, यार काश उसी वक्त कर लेता. Yeah, no, Masha, look at where you are today. So I think journey इसी तरह बनती है. True. मतलब I don't regret it any moment of my life. I went to Lyceum. I think it went well for that. So let's move on. With Sure. आपने बात की थी career counseling के हवाले से, and people have this stigma regarding career counseling regarding it. But mostly counselors के साथ भी लोगों का ये होता है कि यार counselors के साथ नहीं करना यार. They are trying to send you. Yeah. They're not counseling you. They're trying to send you abroad. मतलब Yeah. it's not their concern or their agenda कि आपको सही तरह counsel किया जाए. हाँ. बस हमें ये customer मिल जाए. Yeah. What they stigma है. What do you Yeah. think about that?
आई थिंक जो आप एक्चुअली कह रहे हो वो एजेंट वर्सेस काउंसलर की एक डिबेट है, हाँ ठीक है? तो ये आई थिंक फैमिलीज और स्टूडेंट्स का आई थिंक राइट होना चाहिए कि उन्हें हम्म इतना तो पता हो कि एम आई गोइंग टू अ काउंसलर और अ गाइडेंस काउंसलर, हम्म जिनका बिजनेस मॉडल होता है, दे वर्क डायरेक्टली, उनकी पेमेंट्स जो होती हैं वो विद द फैमिली होती हैं, हम्म उस पर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता. True. आई विल नॉट बी ह्यूमन और लाइक साइकोलॉजिकली मेरा ये नहीं होगा कि मैं वहाँ भेजूँ जहाँ से मुझे कमीशन आएगी, हाँ राइट? तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि आर यू गोइंग टू एन एजेंसी, एंड ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट फॉर एजेंसीज, दे आर अ बिग पार्ट ऑफ द हायर एजुकेशनल True. structure in Pakistan, but their business works differently, their payments and their business goals are different, Hmm. and their handling is different, and their payment comes from the universities versus counselors. So True. We Guide Now is a college counseling agency, so we take our payments up front. We see what's best for the child's future and happiness. Hmm. So the university or panel is not the way we work. True. That's interesting. मतलब because I feel एक had this stigma कि यार काउंसलर के पास नहीं जाना है, and हाँ. मतलब how do you counter that when you पहले this you told me कि यार आप direct front up ले लेते, and जी. that's a great strategy to begin with. I think a lot of counselors need to do that. करने लग गए, लेकिन ये आई थिंक जरूर पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करके जाएं, आप किसके पास जा रहे हैं, उनके प्रीवियस स्टूडेंट्स who have they worked with, उनके टेस्टिमोनियल्स क्या हैं, थोड़ी थरर कंपैरेटिव मार्केट रिसर्च करें, उससे फिर डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती, ये नहीं होता कि हमारे पैसे ज़ाया हो गए, या वो माइंड में एक्सपेक्टेशंस की मिसअलाइनमेंट नहीं होती. अगेन टाइमली रिसर्च एंड इंडिपेंडेंट रिसर्च, नॉट मामू और कजिन्स एट दिस. तो चले, अब उसने ले लिया आपसे गाइडेंस, एंड देन उसके बाद उसका जाने का टाइम आ गया, तो लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्स्टिकल्स. या पहले बात कर लेते हैं कि पहले मिस्टेक्स क्या करते हैं. मोस्ट स्टूडेंट्स मेक दैट मिस्टेक्स व्हेन दे आर अप्लाइंग अब्रॉड. तो व्हाट आर दोस कॉमन मिस्टेक्स दैट दे फील कि यार ये नहीं कर सकते, या दे कैन गाइड देमसेल्व्स राइट नाउ. आई थिंक सबसे पहले फाइनेंसेस, बिकॉज हमारी जो क्या कहते हैं करेंसी कि जब एक्सचेंज रेट्स आप देखते हैं, True. तो whatever region you go to, it's very expensive for anyone from any social income strata. True. तो सबसे पहले तो फाइनेंसेस अम्मी अबू से पूछ लें कि फाइनेंशियली व्हाट्स feasible, and not just most people in Pakistan have more than one children at home, so they can't spend their lifetimes everything on one child. To have that comfortable timely conversation कि for my education what is a budget that's workable. जब वो idea हो जाए, then shortlist some countries, एंड विद इन दोज कंट्रीज उस मेजर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, रैंकिंग सिर्फ सब्जेक्ट की नहीं होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी की अपनी रैंकिंग्स भी होनी चाहिए. तो ऐसे आप 1-2 कॉलम्स अगर बनाएं आफ्टर पिकिंग द राइट कंट्री, तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी शॉर्ट लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ है. बट कॉमन मिस्टेक्स यही होती है कि फाइनेंसेस का आइडिया नहीं होता, दे वर्क सो हार्ड इन देयर एप्लीकेशन एंड इन डिफरेंट कंपोनेंट्स. जब जाने का टाइम होता है, अम्मी अबू से हाथ ऊपर कर लेते हैं कि बेटा बट वी नेवर सेड वी कुड अफोर्ड दैट. अगेन फिर वो प्रॉब्लम होती है. सेकंड आई थिंक कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि प्रोफाइल बिल्डिंग पे फोकस करें. ग्रेड्स आर नॉट जस्ट इनफ, बिकॉज दुनिया में कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा है. तो पिक 2-3 थिंग्स दैट यू genuinely passionate, build a cohesive holistic profile over the maybe 9th grade onwards, कि you should stand out, and grades are never going to be enough. थर्ड कॉमन चीज जो आई थिंक मिस्टेक होती है, जो मेन एसेज होते हैं उन पे हरी नहीं करें. और फिर एक और चीज, थोड़ा सा एक्सपर्ट के साथ काम कर लें. इफ यू कांट अफोर्ड end-to-end college counseling, We Guided Now offers consultation sessions, and a lot of others do. Have that 40-minute chat, अपनी प्रोफाइल असेसमेंट कराएं, अपना एसे का एडिट कराएं या CV रिव्यू. तो जो भी आपकी अफोर्डेबिलिटी है उस बजट में थोड़ा एक्सपर्ट गाइडेंस जरूर लें. Right, that's quite insightful, matlab, and coming from a counselor itself, you are a master of those conversation doing it. But let's take it up, you guided the mistakes out there. Yeah. But let's, once students वहाँ पहुँच जाते हैं, एक obstacle challenges वहाँ पहुँचने के बाद भी होते हैं, and you have talked in the beginning, in the past as well. So मतलब what do you think, obstacles वहाँ पहुँचने के बाद क्या face किए जाते हैं? आई थिंक पहुंचने तक तो एकेडमिक्स होते हैं, पहुंचने के बाद एकेडमिक इश्यूज थोड़े कम होते हैं, ज़्यादा इंटरपर्सनल, सोशल और ह्यूमन होते हैं. सबसे पहले तो कल्चरल शॉक ये होता है कि अपना काम खुद करना है, बिकॉज मोस्टली हमें यहाँ नहीं आदत. तो और सिर्फ एक दिन नहीं करना, और सिर्फ एक वक्त एक दिन, हर रोज हर चीज़ करनी है, और साथ ही साथ पढ़ाई को भी लेकर चलना है. तो आई थिंक बेसिक्स लाइफ स्किल्स लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, बजटिंग, इमोशनल मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बीइंग हैप्पी, मैनेजिंग योर नर्व्स ऑन अ वेरी टफ डे, कॉन्फ्लिक्ट, ये वाली चीज़ें, ये सबसे. और ऑफ कोर्स होम सिकनेस होती है, सीजनल डिप्रेशन होती है, ऐसी चीज़ें होती हैं जो आई थिंक हम यहाँ फॉर ग्रांटेड लेते हैं. तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स ये होती हैं. Right.
So मतलब I agree with सबसे पहला I do agree with this challenge. मतलब ये कि सब खुद करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है. एंड जब इंसान को अपना घर, अपना कमरा, अपने खाना पीना एट द सेम टाइम अपने कपड़े भी धोने हैं, तो everything needs to be planned out. आप have to have a schedule there. And मतलब I couldn't do it for 2-3 weeks, so I don't know what to expect. Or budgeting. That's I think that's a fundamental component of financial Yeah. literacy. मतलब I do agree with that. Budgeting is very important. And I mean, I've seen students जिनके लिए बहुत बहुत बड़े budgets भी कभी enough नहीं थे, और कभी अगर उनमें थोड़ी सी basic financial management या literacy थी, तो वो university के उस budget में saving investments करके भी आ गए. तो अब तो ऑनलाइन लर्निंग की वजह से हम ये नहीं कह सकते स्कूल ने नहीं सिखाया. हाँ. तो थोड़ा सा बजटिंग पे फोकस करें, सेविंग पे भी फोकस करें, और पार्ट टाइम जॉब्स. राइट. ये एक बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन होता है पार्ट टाइम जॉब्स के लिए. मतलब हाउ डू यू फेस दैट? जिन्होंने कभी जॉब की नहीं होती वो आजकल पूछ रहे होते हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए. मतलब हाउ डू दैट? आई थिंक पार्ट टाइम जॉब्स तो हर बंदा करने लग गया है. Hmm. आई डोंट थिंक कि जाते ही आपको मैकेंजी को कोई पार्ट टाइम जॉब मिलेगी. हाँ. नहीं, स्टार्ट विद योर लाइब्रेरी, स्कूल कैफे, डू वेरी बेसिक थिंग्स. और वहाँ ईगो मत लाएं. यहाँ होता है ना कि अगर किसी को चाय बना के दी तो किस क्लास से आपका ताल्लुक है. वहाँ इक्वलाइज्ड, और वो भी बहुत बड़ा लर्निंग है. और एक ऑब्स्टिकल से आप जंप करते हैं कि द वर्क दैट यू डू has nothing to do with the respect. It's work and everyone's equal. तो ये एक अच्छा obstacle होता है जिससे आप learn कर सकते हैं. Right. So you talked in the beginning कि finances बहुत important है. बच्चे जब जाने से पहले भी finance important है. काफी लोगों बच्चों को सवाल ये होता है scholarship के हवाले से financial aid. So can you give that insight कि what options that students have and how do they prepare their profile accordingly? Sure, नहीं, ये बहुत अच्छा opportunity सवाल है. दो तरह की सबसे पहले एक होती हैं scholarships. एक होती है need based, जिसमें आपको अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं जो इन इंग्लिश होने चाहिए, नोटराइज्ड होने चाहिए. कॉमन इसमें आपकी इनकम स्टेटमेंट्स होती हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं, सैलरी स्लिप्स होती हैं, एंड जो आप एसेट्स ओन करते हैं. तो ये डॉक्यूमेंट्स, अगर इफ योर मदर एंड फादर बोथ वर्क, ये लाइन अप कर लें. द डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. उससे आपका एक केस बिल्ड होता है, एक लीगल केस होता है फाइनेंशियल एड का बेस्ड ऑन नीड. बट अगर आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए जा रहे हैं, उस पे डिपेंड्स ऑन, एक होती है एकेडमिक मेरिट बेस्ड, दैट्स ऑल ग्रेड्स. उसमें सिर्फ आपके स्कूलिंग ग्रेड्स नहीं, OA लेवल्स, इंटरमेट्रिक और SAT या GRE GMAT अप्लाई करते हैं. सेकेंड होता है मेरिट बट नॉन एकेडमिक, जैसे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप हो गई, या आपकी कोई ऐसी इंटरेस्ट या हॉबी है. तो ये 2 ब्रांचेस होती हैं ऑफ द काइंड्स ऑफ स्कॉलरशिप्स. और उनके क्या टिप्स होते हैं? तो क्या होते हैं? यही टिप्स होते हैं. पहला तो ये होता है कि अपनी डॉक्यूमेंट, अगर आप फाइनेंस नीड बेस्ड के लिए कर रहे हैं तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन को पहले से तैयार रखें. और अगर आप मेरिट बेस्ड के लिए जा रहे हैं, वेदर इट्स एकेडमिक और नॉन एकेडमिक, अगर आप एकेडमिक के लिए जा रहे हैं तो अपने ग्रेड्स पर काम करें. और अगर आप नॉन एकेडमिक मेरिट के लिए जा रहे हैं तो अगर आप किसी स्पोर्ट में बहुत अच्छे हैं, जैसे आजकल पैडल बहुत पॉपुलर हो गया है, उसकी भी स्कॉलरशिप्स हैं, तो फिर पहले देखिए वो कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स हैं और उसमें अपने आप को मास्टर करें. राइट. आजकल बच्चे माँ बाप कहते हैं मतलब दैट कम्स हम जब स्कूल में होते थे तो खेलना कूदने से तो हो गए खराब, पढ़ेगे लिखोगे तो बनोगे नवाब. तो ये देखिए अब ये थिंग्स हैव चेंज्ड. थिंग्स हैव चेंज्ड, लेकिन उसके लिए यू नीड टू नो व्हाट द एंड गोल इज. कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है, क्या इज दैट अ बिग प्रायोरिटी एरिया फॉर दैट यूनिवर्सिटी, व्हाट इज दैट यूनिवर्सिटी. जैसे क्रिकेट में एसेक्स में जो काउंटी क्लब के जो मेन एरियाज है यूके में, तो एसेक्स में बहुत अच्छी क्रिकेट स्कॉलरशिप, एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट्स एक्चुअली राम जैनली आल्सो गॉट दैट. तो लुक फॉर दीज थिंग्स. अगेन थोड़ा रिसर्च करें. पार्शियल स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, बट जो फुल फंडेड है वो इतनी कॉमन नहीं है. तो थोड़े से मैनेज्ड एक्सपेक्टेशंस आर रियली इम्पोर्टेंट. राइट. एग्रीड. अच्छा, बिफोर वी मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द रैपिड फायर क्वेश्चन, अगर कोई सवाल रह गया है, इफ यू थिंक यार हमें ये बात मेंशन करनी चाहिए बिफोर स्टूडेंट्स हैव दैट आइडिया कि अगर वो आज प्लान कर रहे हैं कि हमें बाहर जाना है, एंड दिस इज स्पेशली फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम IB हु आर वाचिंग, उनके लिए क्या एडवाइस हो? अच्छा, एक्चुअली इंटरेस्टिंगली इनफ मेरे जितने मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, माय बिगेस्ट पोर्शन इज IBA. अच्छा. एंड आई लव वर्किंग विद देम. आई थिंक दे आर वेरी वेरी फोकस्ड. वो हर चीज पे नहीं करेंगे, एक फोकस होगा एंड दे. सो आई एम अ बिग फैन ऑफ IBA स्टूडेंट्स. IBA स्टूडेंट्स के लिए मैं एक टिप दूंगी. अपनी, अगर आपके पास एक CV है और उस पे आपको इंटर्नशिप्स या जॉब्स अच्छी मिल रही हैं, डोंट थिंक आपको उस पे मास्टर्स की एक्सेप्टेंसेस मिलेंगी. एक प्रोफेशनल CV और एक मास्टर CV का क्राइटेरिया कंप्लीटली डिफरेंट होता है. ठीक है.
तो उस पे काम करें, और जो बिगेस्ट डिफरेंस होता है जो आपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स अपने एज अ टाइम स्टूडेंट किए हैं IBA, उन्हें फोकस करें एंड उसकी बेसिस पे फिर अपने एसेस को लिखें. ठीक है, that's fundamentally, yeah, I think that's a great advice for students who are listening right now. So let's move to a rapid fire round. Sure. Anything that comes to your mind, Alize? When you take my name, what comes to my mind? हाँ. Alize, really real, ठीक है. Counseling, important, agents or consultants? equal respect. Okay. Foreign education, Not for everyone. money management. Nothing more important than that. ठीक है. IB today. I think we're blessed. Right. It exists. Right. This is my first rapid fire ever, by the way. Right. So How do you think I did? I think you're doing great. And experience, podcast. Podcast, inshallah. Okay, great to have you there. To be honest, I love the episode. हमने कितना information सवाल लिए थे बच्चों से. I hope we have answered all of your questions. मिलते अगले episode में. अल्लाह हाफिज.